آج کل جو پاکستان کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے پاس پھر آؤں اور آپ سے بات چیت کروں. آپ کے سوالات، خدشات جو آپ اس صورتحال میں میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کے ملک کے اوپر کئی لوگ بڑا سوچ رہے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے ملک کو، تو اس لیے میں کہا میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کے سوالات کا جواب دوں. لیکن میں صرف آپ کو صورتحال سمجھا دوں وہ ہے کیا. ہم نے فیصلہ کیا الیکشن کروانے کا. ہم نے اسمبلی، میں نے اور میری ٹیم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی. وہ کیونکہ 1.5 سال سے بلکہ 3.5 سال سے اپوزیشن بار بار یہ کہتی تھی کہ حکومت نااہل ہے، یہ عوام میں جائے گی تو عوام انڈے ماریں گے ان کو، اور انہوں نے ملک تباہ کر دیا. تو یہ 3.5 سال سے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر پھر سے الیکشن استعفیٰ دے، یعنی الیکشن کروائے. تو میں نے تو وہ کر دیا، میں نے تو اناؤنس کر دیا الیکشنز. تو سوال اب یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے ہیں؟ یہی یہ چاہتے تھے کہ اتنا بری حکومت ہے اور نااہل اور سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ صحیح معنی میں الیکشن بھی نہیں جیت کے آئی. تو یہ کہتے تھے کہ آپ عوام کے پاس جائیں الیکشن کروانے کے لیے. تو جب ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بحال ہو. تو میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کی ووٹ سے آنا، یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اور 20 سے 25 کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے، یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو جو پبلک جیسے ووٹ دیتی ہے. تو میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو، اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئیں. سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش، میری 3.5 سال میں ایک ہی کوشش رہی ہے NRO لینے کی. NRO کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، بیل پہ ہیں. شہباز شریف بھی بیل پہ ہے، وہ اس کا بیٹا بھی بیل پہ ہے، یہ 2 بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی کرپشن کیسز پہ. نواز شریف کنوکٹڈ ہے، مجرم قرار دیا گیا ہے، اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر. اسحاق ڈار باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا وہ بھی ہے، اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ، جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے 3.5 سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ. ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ آ کے نیب کو ختم کریں گے، ان کے کیسز ختم ہوں گے، اور یہ ہوگا NRO 2 لیں گے. NRO 1 جنرل مشرف نے دیا تھا، سارے ان کے کرپشن کیسز تب معاف ہوئے تھے. اس کے بعد 10 سالوں میں یہ سارے نئے کیسز بنے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں تقریباً 90% سے زیادہ. تو کیسز بھی ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیب کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، ان کے کیسز معاف ہوں، NRO 2 ملے، اور پھر سے شروع کر دیں ملک میں وہ باہر پیسہ بھجوانا جو کہ ابھی اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ باہر رہتی ہے. یہ ہے سازش. یہ چاہتے ہیں کہ NRO بھی مل جائے، اپنے امپائرز بھی کھڑے کر دیں، اپنے آفیسز بھی کھڑے کر دیں، الیکشن کمیشن میں بھی جو 2 رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ڈال دیں. تو ایک جو ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں، ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے امپائرز کو ساتھ ملوا کے. تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی بیوروکریسی، وہ نیچے سارا عملہ الیکشن وہ سارا پہلے تیار کر کے پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں. تو یہ ساری اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو، اور یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. تو میں صرف یہ آپ کو عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہے سچویشن. آپ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، جو بھی سوال کیجیے گا مختصر بات کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کیجیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. محمد یعقوب قریشی چولستان روئی سے بول رہا ہوں.
बावलपुर से। वो इलाका है यहाँ जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं। वजीर आजम और फैसल वाकता आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान में पहले हमने कभी नहीं देखा। आज भी हम वजीर आजम के साथ हैं और वजीर आजम को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा नंबर जो है ये हमारा फील कर ले। शाह महमूद कुरैशी है, हमारा रिश्तेदार है। हम चोलिस्तान से वो इलाका या जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं। इन नून लीग वालों से पूछे वजीर आजम और आवाम भी इनसे पूछे कि इनका वजीर खजाना जो है चोर है इसारदार, और वजीर आजम 2 दफा 3 दफा नवाज शरीफ रहा था, वो कहाँ गया है चोर। हम इंशाअल्लाह कसम खाकर कुरान की कसम खाते हैं कि चोलिस्तानी हम वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं। वजीर आजम घबराए ना, और वजीर आजम से रिक्वेस्ट है कि हम चोलिस्तानियों को देखें। वह चोलिस्तान इलाका है पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आप अपना सवाल प्लीज कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वजीर आजम से कोई सवाल करें तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। 0519224900। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा? शहबाज अशरफ। जी शहबाज अशरफ फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। शहबाज जी। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इमरान खान साहब को, जो इन्होंने 440 वाट का झटका दिया है पूरी पीडीएम को। तो अब मेरा ये सवाल है कि आप मैंडेट चोरी होने से किस तरह बचाएंगे? जिस तरह 2013 में 4 हल्कों में मैंडेट चोरी हुआ था, तो अब 2022 में जब इलेक्शन हो तो मैंडेट में फूल किस तरह बनाया जाएगा? जी देखें, अब हमारा अब काफ़ी तजर्बा हो गया। पहले तो हमें इलेक्शन लड़ने की जब शुरू में हम इलेक्शन लड़े तो इतनी हमें समझ नहीं थी। तो अब तो हम जानते हैं और हम पूरी तैयारी करेंगे। अभी से तैयारी शुरू हो गई है हमारी। अभी से हम अपने लोगों के जिनको हमने टिकट्स देने हैं उनका भी अब हम उनके ऊपर काम करना शुरू किया। हमें बहुत बड़ा एक सबक मिला इस इलेक्शन में कि जो लोग जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जिनको इलेक्टेबल्स नज़रिए वाले भी हैं और इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जो हमने देखा है इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह अब हम टिकट बड़े सोच समझ के देंगे। जो असल चीज़ हमने सीखी है, और मैंने ख़ास तौर पे सीखी है, इन तकरीबन अब 26 साल हो गए हैं मेरी पॉलिटिक्स के, कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट में उस तरह के लोग ना आए जो मुल्क का सोचें। अभी ये जो आपने देखा, ये जो लोगों ने अपने आप को बेचा और ये एक आलमी साजिश का हिस्सा बने हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इनका सिर्फ पॉलिटिक्स में आने का मकसद ज़ाती मफादात है। मैं समझता हूँ कि ये जो हो गया है, इन लोगों की अब सियासत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वो अब लोग आएंगे जो कि, और मैं तो उन्हीं लोगों को अब अपनी पार्टी में रखूँगा। और टिकट तो बेशक इलेक्शन हार जाऊँ, टिकट सिर्फ मैंने उन लोगों को देना है जो मुल्क का सोचते हैं, और ख़ुद इंटरव्यू करूँगा उनको। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। 0519224900 हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम एक लेंगे वक्फा। वक्फे के बाद इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप कॉल कर सकते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। हाज़िर होते एक वक्फे के बाद। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम में वक्फा लिया गया है। इससे काबिल वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपसे बात करने का फ़ैसला किया है। सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए हैं? ये यही चाहते थे कि सिलेक्टेड हुकूमत को गिरा दें और अवाम के पास जाएँ। अब हम जब अवाम के पास गए हैं तो ये चाहते हैं कि हुकूमत को बहाल किया जाए और एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन 3.5 साल से इलेक्शन करवाने का शोर कर रही थी। इनकी कोशिश है कि इक़्तिदार में आए, नैब खत्म करें और NRO 2 लें। मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर अज़खुद नोटिस की समाअत। सदारती रेफरेंस को मौजूदा अज़खुद नोटिस के साथ सुना जाए। बाबर आवान की जानिब से ये इस्तदा की गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की इजाज़त से अर्ज कर रहा हूं कि इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, हमारे सामने सियासी बात ना करें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। फारूक एच नाइक की फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा
آپ کو اپنے کیس کی کیا پریشانی ہے؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا، آپ کو بینچ پر اعتراض ہے تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، فل کورٹ کی وجہ سے تمام دیگر مقدمات متاثر ہوتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں گے بلاول بھٹو نے دفتر خارجہ اور وزارت دفاع سے وضاحت طلب کر لی۔ سابق وزیر اعظم اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا واویلا کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے بلاول بھٹو کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر واضح کریں کیا قومی سلامتی کمیٹی میں 197 ممبران کو غدار قرار دیا گیا؟ یہ سوال اٹھایا گیا بلاول بھٹو کی جانب سے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن اجمل جامی۔ جامی صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کنفرم کیا تھا اور جواب دیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اب بلاول بھٹو کی جانب سے بھی وہی سوال پوچھا جا رہا ہے، بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الوقت آپ کو یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو نے دفتر خارجہ اور وزارت دفاع سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ سابق وزیر اعظم اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا واویلا کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر واضح کریں کیا قومی سلامتی کمیٹی میں 197 ممبران کو غدار قرار دیا گیا؟ دفتر خارجہ یا وزارت دفاع سازش کے حوالے سے سرکاری مراسلات کو سامنے لا سکتے ہیں، سازش کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے بے نقاب ہونا چاہیے۔ بات کریں گے، اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اجمل جامی، ایک سوال آپ کی جانب سے کیا گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کے سے کہ کیا جو حکومت کی جانب سے ترپ کا پتہ کھیلا گیا کیا اس میں کوئی کردار، تو ان کا جواب تھا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اب بلاول بھٹو نے یہ سوال پوچھا ہے، کیا کہیں گے آپ، کس طرح دیکھتے ہیں اسے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے جسے ہم لیٹر گیٹ کہہ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جان چھوڑے گا دس وے اور دیٹ وے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر ان گنت سوالات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کا حقیقت پسندی سے جائزہ لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک یعنی امریکہ پاکستان میں ایک سفیر کو بلا کر سے بتائے کہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف، اور پھر جس شخص سے ہمارے سفیر ملے وہ پھر وومن ڈے کی تقریب پہ وہیں موجود ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ وہی سفیر پاکستان کے لیے ایک پیکیج کے اوپر اسی شخص کی خدمات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ انہی دنوں واقعہ سارا پیش آیا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کبھی ممکن ہوا ہے تاریخ میں؟ بالکل، جو سپر پاورز ہوتی ہیں ان کا وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں، لیکن اس طرح بلنٹلی رجیم چینج کرنے کے لیے سفیر کو بلا کر بتایا جائے میٹنگ منٹ، یہ ماننے کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ ہمارے پاس متفقہ اطلاعات ہیں، کنسرن کوارٹر سے ہمارے اس بارے میں بات کی ہوئی ہے کہ یہ پروبیبلی جو پاکستان کے ایمبیسڈر تھے وہاں پاکستان میں، جو 7 تاریخ سے 24 تاریخ تک وہاں تھے، اس بیچ میں انہوں نے الوداعی ملاقاتیں کرنی تھی، تو یہ ان کی ایک اپنا ذاتی تجزیہ ہے، بیسڈ اپون ہز انڈرسٹینڈنگ اسیسمنٹ۔ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی وہاں پر جو گفتگو ہوئی ان کو میٹنگ منٹ کا حصہ بنایا، تو اس کو انہوں نے مراسلے کی فارم میں یہاں پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھیجا، اور اسی طریقے سے دیگر کنسرن کوارٹر جو ان کو بھی یہ مراسلہ ملا۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بڑی ٹھیک ہے اجمل جامی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سینئر اینکر پرسن کامران شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بلاول بھٹو کے اس اقدام کو؟ انہوں نے جو جواب طلب کیا ہے، جواب مانگا ہے۔ بلاول صاحب تو خیر سیاست کر رہے ہیں، لیکن میں نے 1.5 ہفتہ پہلے اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہا تھا کہ اگر یہ اتنی بڑی سازش ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے، جو ہر چیز پہ آ کے عوام کو بریف کرتے ہیں، انٹیلیجنس کے ہر معاملات شیئر کرتے ہیں، تو پاکستان پہ کچھ سائبر وار فیئر بھی ہو تو وہ اویئر کرتے ہیں پاکستانی عوام کو، تو یہ اتنی بڑی کانسپیریسی اگر فوج بھی اس میں آن بورڈ ہے اور فوج بھی یہی سمجھتی ہے کہ اتنی بڑی کنٹروورسی کو پرائم منسٹر صاحب سمجھ رہے ہیں، سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اسے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج اس کو اس طرح کنٹروورسی نہیں سمجھتی۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے کے مطابق پتا ہے، وثوق سے بتا رہا ہوں، پاکستانی فوج جو ہے اس کو 27 مارچ کو پتا چلا کہ یہ کوئی بہت بڑی کنٹروورسی ہے، جب عمران خان صاحب نے جلسے میں اس کا اعلان کیا۔ 27 تاریخ سے پہلے نہ پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو بتایا کہ یہ اتنی انٹینس کنٹروورسی یا کانسپریسی چل رہی ہے، اور نہ سیکورٹی اداروں نے جو ہے اس کو سمجھا۔ تو یہ سارا معاملہ تو پوسٹ میچ تھاٹ ہے جو آیا ہے، اور میں تو ویسے یہ ریکویسٹ کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو بلائیں اور ان کو بلا کے پوچھیں، کیونکہ وہ سپیریئر ایکسٹرنل ہماری جو ایجنسی ہے سیکورٹی کے، اس کے وہ ہیڈ ہے اور ذمہ دار بھی ہیں، وہ بتائیں آگے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ انفارمیشن ہوگی کہ اگر ہمارے پارلیمنٹ کے 190 سے اوپر لوگ بکے ہوئے ہیں، امریکن ڈالرز لے رہے ہیں، ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس آئی کو تو پتہ ہی ہوگا نا اس کے بارے میں۔ ڈی جی آئی ایس آئی آگے کورٹ میں بتائیں، ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرے، پتہ چلے، کیونکہ
इस रूलिंग के मुताबिक तो पाकिस्तान की 68% जिन्होंने वोट लिए हैं, वो 3.5 करोड़ के करीब बनते हैं वोट, उनके 5.5 में से टोटल जो वोट कास्ट हुए लास्ट टाइम, वो सब गद्दार है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है सिर्फ वो ईमान भी हैं, बाकिरदार भी हैं और वो नेशनलिस्ट भी हैं। अगर ये इलेक्शन 90 डेज में इस फैसले के बगैर हो जाता है या स्पीकर की रूलिंग को अपहोल्ड करती है सुप्रीम कोर्ट, तो मेरी जाती राय है फिर इलेक्शन का फैसला और इलेक्शन के रेटरिक्स ये होंगे कि ये सारे गद्दार है अपोजिशन और इमरान साहब जो है ही इज द ओनली नेशनलिस्ट एवर प्रोड्यूस इन दिस कंट्री। अच्छा कामरान शाहिद साहब, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि साजिश को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए बेनकाब होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? ये बिलावल भुट्टो मामला किस रुख ले जाना चाह रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, बिलावल साहब की बात पे तो मैं क्या कमेंट करूँ। मेरी अपनी ये सवाल है, बिलावल साहब से भी पहले का ये सवाल है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ऑब्वियसली स्टेप इन करके बताना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी मुल्क की सालमियत जो है वो उन्होंने खतरे में डाल दी है ना गवर्नमेंट ने सब। और इसका मतलब तो ये है कि ये सब जो है वो स्लीपिंग मोड में थे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इन हिमसेल्फ वाज अवेक एंड ही वाज नॉट गोइंग टू शेयर दिस इंटेलिजेंस विद एनीवन, जो कि सिक्योरिटी के सबसे बड़े बड़े इदारे हैं और जिनको आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को वो ब्रीफ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास तो अपनी कोई एजेंसी नहीं है जो काम करे। ये ISI दुनिया की आपको पता है टॉप एजेंसीज के अंदर आती है, जिसका तो अमेरिका और क्या पूरी दुनिया मौतरफ है। तो उस ISI को अगर नहीं पता, अस्यूमिंगली, मुझे नहीं पता उनको पता, लेकिन मुझे ये पता है उनको नहीं पता था, क्योंकि ये ऐसी बात ही कोई नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले ISI को पता होता है, सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान को पता और सबसे पहले DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होती है। तीनों काम नहीं हुए, तो इसलिए शक मुझे बहुत है कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। तहरीक एतमाद से बचने के लिए एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कराया गया। स्पीकर असद कैसर से जो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, और वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने फैसला भी कर दिया। आप सोचे ना कि फवाद चौधरी, मैं वहाँ पार्लियामेंट में मौजूद था, फवाद चौधरी साहब ने जब ये केस पेश किया है तो डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर के बहस पे आए थे वो तो सिर्फ एक एजेंडे पे आए थे कि वोटिंग करानी है। ये न्यू डेवलपमेंट जो थी वो तो स्पीकर को पता ही नहीं होनी चाहिए कि क्या न्यू डेवलपमेंट। स्पीकर इज बाय द बुक, हैज टू बी न्यूट्रल। लेकिन वो क्योंकि मिली भगत थी गवर्नमेंट की एलिजेडली और स्पीकर की, तो स्पीकर ना मौजूद होने के बावजूद, ना ये बात सुनने के बावजूद फवाद चौधरी की वो लिखा हुआ फैसला लेके आए अपने डिप्टी स्पीकर का। ये तो वो टेक्निकल लुपुन है जो कोर्ट ने आज डिसाइड करना है कि अगर स्पीकर को अपहोल्ड करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को फिर स्पीकर वायलेट कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरी अपोजिशन गद्दार है। और नंबर 3, सिर्फ इमरान खान इस मुल्क में सबसे मुखलस और नेशनलिस्ट लीडर है। अभी आप देखें कि अमेरिका के ऊपर जो उन्होंने जंग शुरू की है, अमेरिका ने हमसे क्या मांगा है जो इन्होंने हमसे कह रहे हैं कि हम ये नहीं देंगे। क्या यहाँ अफगानिस्तान की वॉर लगी जो अमेरिका सपोर्ट मांग रहा है, या इराक की वॉर लगी हुई है, कोई यमन में फौज मांग रहा है अमेरिका, जो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। और जो सिक्योरिटी डायलॉग में अगले दिन आर्मी चीफ ने कहा कि हम अमेरिका समेत तमाम ममालिक के साथ एक्सटेंसिव ताल्लुकात चाहते हैं, हमारी ट्रेड उनके साथ है। आई थिंक ये पाकिस्तान का बयानिया है। अब इसको अगर मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जो है जिस जगह में वो चल रहे हैं, वो तो मेरा ख्याल से जो उनको भी चैलेंज कर देंगे आर्मी चीफ को, आपने कहा क्यों। लेकिन आर्मी चीफ ने इसलिए कहा कि दिस इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें इस वक्त जरूरत ही नहीं किसी जंग की, ना हमसे कोई जंग कर रहा है। आप बिला वजह मौला जट बनी जा रहे हैं तो बनी जाए, वो आपकी पॉलिटिकल गिमिट्री तो हो सकती है, लेकिन इस मुल्क के लिए बहुत डैमेजिंग होगा ये कि आप पूरी दुनिया को लड़ा दें। रूस आप क्यों गए हैं? आप सोचिए ना, मैं सवाल पूछता हूँ बीइंग अ सिटीजन, रूस में क्या है आपका? वो उसने अगर बाइडन ने आपकी कॉल नहीं उठाई, आप रूस चले गए, उससे हुआ क्या? आपकी बल्कि यूक्रेन से गंदम आती है, यूरोप से आपकी ट्रेड है, आपने पूरी दुनिया को नाराज करके, और आप बड़े फख्र से कह रहे हैं मेरी बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है। मैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी से सवाल पूछता हूँ, किस तरह आपकी काबिल फख्र पॉलिसी है रूस में जाना? इस तरह तो मुल्क के लिए डैमेज हो सकता है। अच्छा अजबल जामी साहब, जैसे कि ख़त का ये जो मामला है, सारी बात ही ख़त से शुरू हुई है, तो ये जो मामला है अब ऐसा क्या लगता है आपको कि ख़त सामने आ सकेगा? यही मुतालबा किया जा रहा है, ख़त को सामने लाया जाए, कौमी असम्बली में पेश किया जाए? मैं कामरान साहब की तजवीज़ से 100% एग्री करता हूँ कि दिस इज हाई टाइम्स, क्योंकि जिस रूलिंग जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने दी है उसके मुताबिक तो अगर वो रूलिंग जस्टिफाई करार पाती है उसके मुताबिक तो एक ही मतलब होगा कि ये 197 अरकान कौमी असम्बली गद्दार करार पाए हैं। तो क्या हम ये इस बात को मानेंगे, या फिर हम उन सवालात को उठाएंगे जो बिलावल भुट्टो के मुताबिक बात उठ रहे हैं? इस हाई टाइम के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुल्क की जो सुपीरियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके सरबराह को बुला के पूछें कि क्या वाकई इस मरासले में was there something threatening or was there something nearly unusual? अगर threatening है फिर स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त साबित होती है, क्योंकि एनएसए का जो एलानिया था उसमें कहीं भी बैरूनी साजिश, धमकी या किसी भी किस्म की कोई बहुत खतरनाक किस्म की मामला का जिक्र नहीं है। और जो इसके 7 मार्च को अगर ये खत मिला है तो 27 मार्च तक फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इस बारे में इकदाम क्यों नहीं किए? और फिर कौमी सलामती कमेटी के एलानिये में उस तरह से उस तयस्सुम के साथ, उस शद्दोमत के साथ वो जिक्र क्यों नहीं किया गया जो जिक्र
हुकूमत, वजीर आजम और वज़रा किया करते थे, अगर नहीं तो फिर उसके ऊपर भी सवाल आता है। और ये जो एलामिया था जो मीडिया के सामने आया था, उसके ऊपर जो मीटिंग मिनट थे, आज हम उसकी बात कर रहे थे उस मामले में, क्या उस पर तमाम मेंबर्स ने साइन किए थे? क्या हुकूमत का जो मौक़िफ़ था, उस मौके पर पैरेलल जो साइड पर जो अस्करी क़यादत बैठी थी, वो भी तमाम मीटिंग पर साइन कर रही थी? क्या उस पर मुकम्मल इत्तेफाक था या नहीं था? उसके बाद ये फिर ऑफिशियल दस्तावेज बनती है, तो वो ऑफिशियल दस्तावेज जो है वो भी ले रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अजमल जामी साहब, आपसे ये कहना चाहेंगे कि क्या आप इस सिलसिले में कोई राब्ता करने की कोशिश करेंगे, कोई वजाहत हासिल कर सकेंगे? क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो वज़रा थे उनकी जानिब से इस बयानी को बनाया जा रहा था कि कौमी सलामती कमेटी के शुरका ने इस बात से इत्तफाक किया कि ये साजिश है, तभी हमने एहतजाजी मुरासला दिया अमरीकी सिफारतकार को बुलाकर। जी देखिए, मैं तो इस सिलसिले में पिछले 2 हफ्तों से एक ही नुक्ता बार बार उठा रहा हूँ, जो हमारा कंसर्न क्वार्टर के जिम्मेदारों से जब भी रास्ता हुआ है, एक ही जुमले की समझ आ रही है कि देयर वाज नथिंग थ्रेटनिंग, बट यस देयर वाज समथिंग अनयूजुअल इन दैट केबल एंड दैट कम्युनिकेशन। और जो अजमल जामी साहब अनयूजुअल था, वो गवर्नमेंट के खिलाफ था, वजीर आजम के खिलाफ था या मुल्क के खिलाफ था? देखिए, ये किसी भी मुल्क जब सफीर दूसरे सफीर से मिलते हैं तो वो उस मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करते हैं जी। अगर भी एग्जैक्टली हाउ हमारे सफीर से यही कम्युनिकेशन की गई हो। ठीक है, अजमल जामी साहब और कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें, ये कहना है फवाद चौधरी का। और तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा, हम अभी बहुत खामोश हैं, इसे गनीमत समझें, ये कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से। तो फवाद चौधरी की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है बिलावल भुट्टो के बयानात पर, और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें, ये कहा गया उनकी जानिब से। बराह रास्त आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। आपका वज़ीर आज़म, आपके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के सवालात के जवाब दे रहे हैं। ये नहीं कि आपने चुप करके बैठ जाना है। जब कौम एक बुराई देखती है और उसके खिलाफ चुप करके बैठ जाती है, अपना नुकसान करती है। मैं आज प्रोटेस्ट यहाँ भी कर रहा हूँ, आज ये रेड जोन के बाहर अपनी सारी लोगों के साथ मैं भी वहाँ आऊँगा, और मैं सारी कौम को कहता हूँ कि आपने प्रोटेस्ट करना है। ये सिर्फ यही नहीं हुआ कि जमहूरियत के पैसे दे के लोगों को ख़रीदा जा रहा है, जो वादा करके आए हैं, ओथ लेके आए हैं कि जी हम मुल्क की, जब ओथ लेता है, जब मेंबर पार्लियामेंट बनता है, उस ओथ की भी खिलाफ वर्जी है, अपने आप को बेच भी रहा है, फिर ऊपर से बैरूनी साजिश भी है जो वाजे हो गया, जिसकी वजह से स्पीकर ने असेंबली डिज़ोल्व की कि कभी भी इस तरह के बाहर का मुल्क नहीं कहता कि आप अगर ये इस प्राइम मिनिस्टर को हटाएंगे, अगर आप इसको हटाएंगे नहीं तो हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, और हटा देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये सारा जो है, ये असल में तो नुकसान पाकिस्तानी कौम का। अगर इस तरह की इस मुल्क में इसी तरह जमहूरियत आपकी चलती रही तो ये तो कोई भी इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर सकता है। क्या करना है? 15-20 अरब लेके लोग खरीद के आप गवर्नमेंट गिरा दें। इसलिए आप सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, अगले कॉलर जी। हेलो, सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब? जी, रियाज अहमद बडानी बात कर रहा हूँ, साउथ पंजाब तहसील अलीपुर से। जी, क्या सवाल है वजीर आजम साहब से? खान साहब से मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज करना चाहूंगा, और उसके बाद है कि बात के खान साहब आप हमें कहते रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। अब हम आपको कहते हैं कि खान साहब आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। शुक्रिया। लेकिन क्या आपको जी, आपको कल कौन, एक मिनट, आपको कल कौन घबराया हुआ नजर आ रहा था? कोई नहीं सर, हमें यकीन करे, इतना खुश हुई, डी चौक पे था और इंशाल्लाह आज भी उधर होऊंगा। शुक्रिया जी। चलो अगले कॉलर हमारे साथ, नंबर आप मिला रहे हैं कि उससे पहले कि हम कॉलर की तरफ जाएं। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? क्विकली प्लीज। मैं बात कर रही हूँ। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि आपकी अपोजिशन जमात को अदम इत्मीनान की मुस्तरद करके अनसुकून हो गई है, तो क्या तरक्की करके आइन की पाबंदी नहीं है? क्या जमीन फरोशों को हमेशा के लिए नाअहल नहीं कर देना चाहिए? जमीन फरोशों को हमेशा के लिए नाअहल नहीं कर देना चाहिए, क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये सवाल है जी। मैं समझता हूँ कि सिर्फ नाअहल ही नहीं करना चाहिए,
ان کو जेलों में डालना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं क्रिकेट कैप्टन था, ये कोई 30-32 साल की मैं क्रिकेट खेलता था तब। तो मुझे एक पता चला कि हमारे 4 खिलाड़ियों को पैसे ऑफर किए गए। वो फाइनल था शारजा के अंदर, फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे 4 प्लेयर्स को उन्होंने ख़रीद लिया है। और आगे कल मुझे रात को टेलीफोन आया, बल्कि जावेद मियां था मेरे जो वाइस कैप्टन थे, उन्होंने मुझे रात को 2 बजे जगा के टेलीफोन किया कि कल हमारे 4 प्लेयर बिक गए। मैंने सारी टीम को बुलाया मैच से पहले, उसमें से सब, वो याद भी होगा उस टीम को, मैंने सबको खड़ा किया, सारा क्राउड भरा हुआ था मैच शुरू होने से पहले पिच के बीच में। मैंने कहा मैं आज सबको एक एक को आपको देख रहा हूँ। किसी ने भी सही माने में क्रिकेट ना खेली, क्योंकि मुझे पता है जुए की ऑफर है। मैंने कहा मैं सिर्फ तुम्हें टीम से नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हें जेलों में डलवाऊंगा। और मुझे अभी भी याद है कि वो हम मैच बड़े आराम से जीत गए और बाद में मुझे पता चला कि वाकई ऑफर थी। देखिए जब तक लोगों को खौफ ना हो, बदी करके, गलती करके, माशरे को अपना ज़मीर बेच के, मुल्क की जमहूरियत को बेच के, जब तक उनको खौफ ही नहीं होगा कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हम पैसे भी पकड़ लेंगे और फिर इलेक्शन लड़ लेंगे, जब तक आप ये नहीं करें। नहीं तो आप सज़ा देते क्यों हैं? सज़ा जेलों में लोगों को डालते इसलिए है ना कि लोगों को बताने के लिए कि कोई भी जुर्म करेगा तो जेल में जाएगा। तो जब आप जुर्म के बाद लोगों को जेल में नहीं डालते, माशरे की तबाही के दरवाजे खोल देते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, अगले कॉलर हमारे साथ, नंबर है 0519224900। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, मैं डॉक्टर एहसन हमीद इरफान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी डॉक्टर साहब। जी जी, मेरा सवाल है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। पहले तो हम जितना अप्रिशिएट करें कम कि जो सेहत कार्ड है, अब आप इमेजिन करें वो इलाके बांडी टूडा होगी, पीरा दबाटा हो गया, और हमारे गांव के जो इलाके हो गए, वो लोग इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में, पंजाब जैसे बड़े शहरों में आके अपने घर बेच देते थे, जमीनें बेच देते थे, और जमीनें मतलब हाथ से गिरवी रखवा देते थे। तो पहले तो उन सब माओं की, उन बच्चों की, उन सब लोगों की आपके साथ वज़ीर आज़म साहब दुआ है। जितना भी हम अप्रिशिएट करें, बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन अब इवेंचुअली सारी कौम इस बात पे आपका शुक्र अदा करती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि ये हुआ। तो थैंक्स टू यू खान साहब। और दूसरा, आपका जो ये स्टैंड है, लिटरली कल हम सब समझ रहे थे कि पता नहीं क्या हो, लिटरली मतलब 2-3 दिनों से वो मीडिया भी बार बार जो है ना, लग रहा था कि जिस तरह एक ही बड़ी जा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। नेशनल असेंबली में बैठकर अपने नंबर्स, अपनी अक्सरियत दिखा चुकी है, मोशन का वक्त भी हो चुका है, और स्पीकर ने और डिप्टी स्पीकर ने बिल्कुल गैर आइनी तौर पर, फौरी तौर पर एक नॉन इशू के साथ उसे एक अलग इशू से मिला के सेशन मुलतवी कर दिया। तो उम्मीद ये है और हमारी इस्तदा ये थी कि इतने बड़े इशू पर एक फुल बेंच, पूरा बेंच बैठे आला अदालत का, ताकि सारे लोग मुतमईन हो। ये नहीं कि किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये एक हमारी इस्तदा थी सुबह में। और दूसरी बात ये है कि 2 इश्यूज़ हैं जी, मोटे मोटे इश्यूज़ में डिबेट और प्रोसीजर, ये बातें सब वाज़ेह हो चुकी हैं, रूल बुक भी सामने है, आइन भी सामने है। कल जो हुआ पाकिस्तान में, ये आइन शिकनी की बदतरीन मिसाल है। एक सिविलियन कू हुआ है, ये सिविलियन कू कल आपके सामने हुआ है, और असेंबलियों को जिस तरह गैर आइनी तौर पर मुअत्तल किया गया, ये हमने पाकिस्तान में पहले नहीं देखा। क्या ये एक नया नज़रिया ज़रूरत बनता जा रहा है? ये सवाल अब हमारे जहन में भी हैं, और हमें उम्मीद है कि नज़रिया आइन इस वक्त बाला होगा, क्योंकि जिस मुल्क में आइन बाला ना हो, उधर सियासत और जमहूरियत के कोई माने नहीं होते, फिर सिर्फ स्ट्रगल होती है, जो हमने सारी ज़िंदगी की है।
इसी आइन को बहाल करने के लिए। और आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का दिन है। आपको याद होगा 4 अप्रैल जब शब खून मारा गया था जमहूरियत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजीम कायद पर। ऐसा ना हो फिर हमें वो याद ताज़ा हो, लेकिन बात भूली नहीं जाती कि अदालती कत्ल हुआ, उसका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया, वो आज तक किसी कंक्लूजन पर नहीं आया है जी। और ये भी इस्तदा होगी कि आज जमहूरियत और आइन का अलम उठा के रखे अदालत, हमें वो दिन ना याद दिलाएं जब इस तरह अंधेरे में या खुलेआम आप देखते थे कि आइन शिकन को तहफ़्फ़ुज़ दी जाती है। आज हमारी इस्तदा और उम्मीद है कि आइन शिकन स्पीकर, आइन शिकन डिप्टी स्पीकर, जिसकी ऑलरेडी खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि उसकी कोई साख नहीं है, उसके वोट्स चैलेंज हो चुके हैं, ये दोनों और एक ऐसे वज़ीर आज़म जो अक्सरियत खो चुका है, प्री प्लान स्क्रिप्ट के मुताबिक ये नहीं कर सकते जो उन्होंने कल किया है। उन्होंने पूरी नेशनल असेंबली और जमहूरियत और आइन पर कातिलाना हमला किया है कल, और ये कातिलाना हमला हमारे सबसे काले बाब में होगा अगर इसका इजाला ना किया गया। इसका सदबाब होना है और हम सब एक साथ जमहूरी कुव्वतें नबर्द आज़मा फिर होंगी इंशाअल्लाह। शाह साहब भी आ गए हैं, उनसे भी बात कर लीजिए। आइए खुर्शीद शाह। थैंक यू शरीफ, आप सबका शुक्रिया। पहले तो आज का दिन है 4 अप्रैल, ये वो दिन है जिसने जमहूरियत को बचाने के लिए अपने आप को तख्तेदार पे ले गया, और आज फिर हम जमहूरियत को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए, अदारों को बचाने के लिए एक मरतबा फिर इसी अदालत में हमने आके दरवाज़ा खटखटाया है। शुक्र है कि इस अदालत ने सुओ मोटो ले लिया। वो सुओ मोटो इसलिए लिया गया कि वहाँ देखा कि इरेगुलरिटी कुछ हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। हम शुक्रगुजार हैं अदालत आलिया का, उन लोगों ने बात को देखा और समझा। हम ये समझते हैं कि एक मरतबा पाकिस्तान को जमहूरियत के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जमहूरियत आवाम की ताकत की एक निशानदी है, आवाम के फैसले की निशानदी है। हमारी लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दे दी। कल एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसमें जमहूरियत को मजाक बनाया गया, पार्लियामेंट को मजाक बनाया गया। हम ये समझते हैं कि हमें इक़्तिदार के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, अवामी हकूक़ के लिए हमने आवाज़ उठाई थी और आइनी तरीक़ा अख्तियार किया था। आइन के तहत हम आगे बढ़े थे। हमने आइन की वायलेशन नहीं की, हमने कंस्पिरेसी नहीं की, हमने झूठ नहीं बोला। एक फ्रॉड ख़त लेके उसको बहाना बना के पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत को दिखाने के बजाय भागने पे जोर डाला। जो शख्स अपने आप को ये कहता था कि मैं आखिरी बार तक खेलूँगा और अपना टाइम पूरा करूँगा, वो शख्स बीच में से विकटें उठा के भाग गया। उसने मुकाबला नहीं किया क्योंकि वो मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता कि वो जमहूरियत का चोर है और जमहूरियत की उसने चोरी की है, आइन को कत्ल किया है। अब ये फैसला इस अदालत को करना है कि हम सही कहते हैं, हमारी आर्गुमेंट सही है। ये अदारे जितने भी हैं आगे या पीछे, ये आइन के मोहताज है। इन सब अदारों को आइन चलाता है, उसके बाद पार्लियामेंट।
अगर पार्लियामेंट के अंदर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाएं तो अवाम कहाँ जाएगा, फिर नुकसान भी हो सकता है, फिर लोगों के माइट राइट का मसला हो जाता है। तो उसको बचाना है, इन्हीं अदारों का काम है कि आइन को बचाएं। जो सबको बचाता है उसको बचाएं, जो सबको पार्लियामेंट अपने अख्तियारात देती है, जमहूरियत को अख्तियारात देती है, जमहूरियत की तशरीह करती है, उसको बचाएं। ये बात करनी थी मुझे। 4 अप्रैल है, फिर दोहराता हूँ, इस दिन को हमने तख्तेदार को चूमा और जमहूरियत को बचाया। थैंक यू। कोई सवाल है? रिवर्स जाहिर है होना चाहिए, और क्योंकि वो बिल्कुल गैर आईनी था, इतना खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है आईनी और नेशनल असेंबली के कवायद और जवाब क्योंकि मुश्किल होगा इसको सस्टेन करना किसी भी जवाब में। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही थी, जो कंस्पिरेसी की साजिश की बात की जा रही है, मौजूदा आईनी सूरत हाल पर अस खुद नोटिस की समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। मुकदमे को आज ही मुकम्मल करें। फारूक एच नाइक की जानिब से यह इस्तदा की गई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में पार्लिमानी कमेटी का भी जिक्र है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। ऑपोजिशन ने जानबूझकर कमेटी में शिरकत नहीं की। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में सारा मामला रखा गया था। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताएगा तो समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत का कल दिन 12 बजे तक मुलतवी की गई है और कल अब ये केस दोबारा सुना जाएगा। आज अपने दलाइल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने सबसे पहले ये इस्तदा की कि एक फुल कोर्ट कायम की जाए और जो इस केस को सुने। ताहम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये रिमार्क किए गए कि अगर आपको किसी पर अदम एतमाद है तो आप बताएं, हम यहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन फुल कोर्ट इससे पहले भी 2 साल तक यहाँ पर काम करती रही, जिसके बायस 10,000 केसेस का इल्तवा हुआ और मुसलसल 63 समातें की गई। लिहाजा फुल कोर्ट के हवाले से आप अपनी बात करें, अगर अदालत ने मुनासिब समझा या जरूरी समझा तो फुल कोर्ट भी कायम की जाएगी। इस पर उन्होंने ये इस्तफसार भी किया फारूक एच नाइक से कि आपको क्या किसी पर ऐतराज है, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी पर ऐतराज नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और अपने दलाइल के आगाज में उन्होंने तफसीलन जो वाकया पेश आया आज गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस में, जिस तरीके से रूलिंग पास की गई डिप्टी स्पीकर की जानिब से, वो तमाम तर जो सूरत-ए-हाल थी वो बेंच के सामने रखी और उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ सवालात भी किए गए बेंच की जानिब से। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज इस्तफसार किया कि अगर स्पीकर अदम एतमाद पेश करने की इजाजत ना दे तो फिर क्या होगा। इस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि स्पीकर ने करारदाद की इजाजत देकर मामले पर 3 अप्रैल तक इजलास मुलतवी किया और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताएं कि ये तमाम जो सियासी बातें इनको छोड़े, ये बताएं कि जो मुकदमे के मेरिट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उस पर अदालत को दलाइल दें। वोटिंग पर जो अदम एतमाद है उससे पहले बहस भी होती है, ये बताएं कि क्या इस पर बहस हुई, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि अदम एतमाद पर बहस की इजाजत ही नहीं दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या बहस की तारीख मुख्तस ना करने पर एतराज किया गया, जिस पर फारूक एच नाइक बोले कि हम तो सिर्फ बटन दबा सकते हैं और उसके बाद जो है वो अगर इजाजत मिले स्पीकर की जानिब से तो उस पर जो है वो अपनी बात कोई भी रुकन कर सकता है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि स्पीकर की रूलिंग भी पढ़ के सुनाई और ये कहा कि इस रूलिंग में भी ये वाज़ेह है कि करारदाद पर बहस नहीं हुई और शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, उन्होंने इजलास के रोज बात करने की कोशिश की लेकिन उनकी भी बात नहीं हो सकी। इस मौके पर उन्होंने जो धमकी आमेज खत लिखा गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उसका भी हवाला दिया और ये कहा कि 31 मार्च को अदम एतमाद की करारदाद पर बहस नहीं कराई गई और फिर जो ये अदम एतमाद की जो एक टाइम फ्रेम था, जो 4 अप्रैल को आखिरी दिन जिसका बनता था, उस पर बहस करके वोटिंग हो सकती थी लेकिन ये अमल नहीं कराया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कि क्या आर्टिकल 95 में बहस का जिक्र है या बराह रास्त वोटिंग का कहा गया है। इस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पर बहस का जिक्र रूल्स में है। इस मौके पर जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि वजीर कानून ने क्या रूलिंग मांगी थी। इस पर उन्होंने कहा कि उसूल यह है कि जब रूलिंग मांगी जाए तो इस पर
پہلے بحث ضروری ہے۔ جسٹس منیب اختر نے اس موقع پر کہا کہ کیا ڈپٹی اسپیکر رولنگ دے سکتے ہیں یا پھر اسپیکر ہی رولنگ دے سکتے ہیں۔ اس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ قانون میں اسپیکر کا مطلب اسپیکر ہی ہے۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ رولنگ صرف اسپیکر ہی دے سکتا ہے۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ کیا اسپیکر اپنی رولنگ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس موقع پر فاروق ایچ نائک کی جانب سے چیئرپرسن کا بھی حوالہ دیا گیا، چیئرپرسن آف پینل کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ان کی جانب سے بھی رولنگ دی جا سکتی ہے۔ اور اب یہ جو معاملہ ہے اس کی مزید جو سماعت ہے وہ کل دن 12 بجے تک ملتوی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے فاروق ایچ نائک کی جانب سے کہ رولنگ کی بنیاد پر اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے۔ صدر نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سے نگران حکومت کے لیے نام مانگ لیے ہیں، 3 دن میں آئین کے مطابق نام دینا لازمی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آج 2 گھنٹے آپ کو سنا ہے، آپ کے جو تمام وکلا ہیں انہیں 2 گھنٹے میں وہ یہ دلائل مکمل کر سکتے تھے، ہم تمام لوگوں کو سنیں گے، سب کو سن کر فیصلہ ہوگا، ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارک بھی سامنے آیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں پارلیمانی کمیٹی کا بھی ذکر ہے، اپوزیشن نے جان بوجھ کر کمیٹی میں شرکت نہیں کی، پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی میں سارا معاملہ رکھا گیا تھا۔ اب اس سوال کا جو جواب ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے وکلا نے اس کا جواب دینا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی استفسار کیا گیا کہ رضا ربانی اور مخدوم علی خان کتنا وقت لیں گے۔ اس پر مخدوم علی خان نے کہا کہ دونوں کو ملا کر تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ فاروق ایچ نائک اس موقع پر بولے کہ تمام نظریں عدالت پر ہیں، آج ہی سماعت مکمل کر لیں۔ اس پر جسٹس جاز الحسن نے کہا کہ اہم آئینی نقطہ ہے جس پر فیصلے کے دور و رس نتائج ہوں گے، دوسرے فریق کو سننا بھی ضروری ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے، اور آج یہ فیصلہ دینا ممکن نہیں ہے، لہذا اب اس کیس کی جو مزید سماعت ہے اسے کل دن 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں کہ جو اپوزیشن کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی گئی، اس پر انہوں نے تمام جو اپوزیشن جماعتوں کے وکلا ہیں ان سے جواب بھی مانگ لیا ہے۔ اچھا محسن، اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیا کل کے روز جو باقی کے فریقین ہیں ان کو سنا جائے گا؟ جی بالکل، کل جو دیگر فریقین ہیں ان کو سنا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی سنا جائے گا۔ امکان یہی ہے کہ کل یا پھر پرسوں ایک عدالت کی جانب سے مختصر حکم نامہ سامنے آ سکتا ہے، اور کیونکہ گزشتہ روز بھی یہ استدعا کی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا کی جانب سے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس پر حکم امتناع دیا جائے، لیکن یہ ریمارک سامنے آئے تھے بینچ کی جانب سے کہ پہلے فریقین کو سنا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی آرڈر پاس کیا جائے گا۔ اب یہ معاملہ کیونکہ اس پر جو تفصیلی دلائل تھے فاروق ایچ نائک کے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے، جو آج بتایا گیا کہ نگراں حکومت کے سیٹ اپ کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو صدر کی جانب سے خطوط بھی لکھ دیے گئے ہیں، اس کے نام بھی بھجوائے جانے ضروری ہیں، لہٰذا اس کیس کا جلد از جلد جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے۔ تاہم اب یہ امکان ہے کہ آئندہ کل یا پھر پرسوں ایک مختصر حکم نامہ عدالت کل یا پرسوں ایک مختصر حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ کل 12 بجے تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ محسن اعجاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے۔ ان کے کچھ اختیارات کو پارلیمنٹری پروسیجرز کے حوالے سے یا پارلیمنٹ کے اندر پروسیڈنگ کے حوالے سے، لیکن جس پروسیڈنگ سے پورے پاکستان کا نظام ہلا دیا گیا ہے، اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں اور اس ملک میں صدر نے خود آئین کو روندا ہے، اس کو میرلی انٹرنل پروسیڈنگ نہیں کہا جا سکتا۔ اور نہ صرف قومی اسمبلی میں یہ کیا گیا کیونکہ یہاں شکست لکھی ہوئی تھی اور وزیر اعظم اس سے پہلے کہہ رہے تھے، اور یہ سکرپٹڈ تھا، جو لکھا ہوا تھا ویسے ہی ہوا۔ ادھر 3 منٹ کی سپیچ ہوئی وزیر کی، ادھر سے ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ آئی، انلیگل انکانسٹیٹیوشنل رولنگ، اور اس کے بعد اگلے 5 منٹ بعد وزیر اعظم صاحب کا قوم سے جو آلریڈی ریکارڈڈ خطاب تھا وہ چلایا گیا، اور اگلے 7 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد صدر صاحب کی اس پہ کانسنٹ آ گئی۔ یہ سارا سکرپٹڈ تھا، یہ میل آف آئی ڈی تھا، لہٰذا یہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹسفائیڈ ہوگا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت صرف جو باریک قانونی نکات ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے نہیں، بلکہ اس معاملے میں یہ معاملہ یقیناً پارلیمنٹ کا ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ ایسی پارٹیوں اور ایسے لوگوں کے حوالے ہو جائے
जो ना आइन को कुछ समझे, ना कानून को कुछ समझे, ना जमहूरियत को कुछ समझे, ना रवायतों को कुछ समझे, ना रूल्स को कुछ समझे, तो फिर हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ता है। और इससे पहले मैंने पहले भी गुजारिश की कि एक वक्त था जब मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में लोग स्पीकर साहब गए थे, पार्लियामेंटेरियंस गए थे अदालत में, फिर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के दौर में जब वो स्पीकर थी, हमारी पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त भी हम आए थे। हम देखेंगे, देखना ये है कि अब हमें इससे ऊपर उठ के तवक्को है कि इसको सिर्फ कानूनी नुकात पे बहस नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए, और जो अपोजिशन की जमातों पे गद्दारी के मुकदमे की बात की गई, उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। आज अदालत के सामने मुकदमा ये है कि या तो अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है तो फिर अपोजिशन की जमातें गद्दार हैं और उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और अगर वो गलत है तो फिर वो मुकदमा या वो रूलिंग देने वाला बंदा वो खुद आर्टिकल 6 का मुजरम है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, और उसके पीछे जो हैंडलर उसके हैं उनका भी होना चाहिए। कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सेकंड है, कल जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुबह से लेकर जितनी देर तक भी वो चली, या उससे पिछले 14 ज़िलों में जिस तरीके से हाउस का कंडक्ट चलाया गया है, उसकी कोई भी जो मिसाल है इन दो किताबों में, पाकिस्तान का आइन और जो रूल्स हैं, उसमें कहीं नहीं मिलती। कल का डिप्टी स्पीकर का जो बयान था, ऊपर से बैठ के, मैं तो रूलिंग भी नहीं कहूँगा, उसके मुताबिक तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकते हैं कि अगर वो कल अपने आप को या किसी को बादशाह डिक्लेयर कर देते, तो क्योंकि जब आइन आपके ऊपर कदगन लगाता है और आइन को आप इग्नोर करते हैं, तो फिर आप तो कुछ भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ताहयात मैं इमरान खान को यहाँ बैठने दूंगा, इसका कोई ना इलेक्शंस की ज़रूरत है। आप ये भी कह सकते हैं कि 17 जजेस जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं सबको बरतरफ करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से चेयर से बैठ के उन्होंने कोई रूलिंग दी है तो वो कुरान शरीफ का सहीफ़ा हो गया। उसके ऊपर बाउंड्रीज़ हैं, और वो बाउंड्रीज़ इन दो किताबों में जो हैं वो तयन किया हुआ है। एक पूरा प्रोसेस चलता है, पहले तो उसको वो डिले करने की कोशिश करते हैं, आखिरी दिन तक लेके जाते हैं, और इस दरमियान कोशिश करते हैं कि शायद उनकी नंबर गेम बेहतर हो जाए, शायद कुछ लोगों को ये वापस अपने पास या प्रेशर के थ्रू या कोई और इंसेंटिव दे के वापस ले आएँ। जब वो उसमें से कोई चीज़ नहीं चलती तो फिर वो आखिर में जो है वो हाउस से फरार लेते हैं एक बहाना बना के, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहाने के अलावा कुछ भी नहीं है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ना इन्वेस्टिगेशन है, और आप खड़े होकर कह देते हैं कि जी हम जो है ये सारी खेल को नहीं मानते। तो मेरे भाई, हमें कभी भी ये शौक़ नहीं होता कि पार्लियामेंट के मसले को हम अदालतों में लेकर जाएं। ये दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अलग अलग ऑपरेट होना चाहिए, लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो सबसे अव्वलीन जो है ड्यूटी है आला अदालतों के, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट की। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो रोल प्ले करना है कि अगर आइन की इस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई तो फिर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि ये लोग कहाँ तक इस सारी चीज़ को लेकर जाएंगे। आप कह रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, 2 पॉइंट्स है, एक तो नेशनल सिक्योरिटी